Hi, I'm Shailesh. Welcome to Pro Talks. Today we're going to talk about a lot more about Botox, keratin, smoothing system. And today we have Tanveer Alam from Zoro Salon. Tanveer, can you please introduce yourself? Say a few bit about yourself. Yeah, hi, I'm Tanveer Alam from the Zoro the Family Salons, and we have one more brand. It's called Silk and Salt. So both the brands are doing very good job, and we are now in the market with the 20 doors and upcoming more here in the market. Wow, that's brilliant. 20 years in the industry. Yeah. That's a lot of experience. So you're the right candidate to be here today. Actually, it's too much experience. I'll ask you some common, questions or common myth or whatever you may want to say about smoothing system, straightening system, the new trend which is going on, that is keratin, Botox, nanoplasty, and so on. So we are going to talk about the texture services today. So I want some insight from you, and you can tell it to our audience and our fellow stylist, whoever is watching us, about what is your experience and what is your Opinion. your gyan about this whole texture Exactly. series which we have in the market going on now. Right. So what most of us say, smoothing treatments aren't damaging. Is it a miscommunication, or it is like we are over promising to the clients? Yeah, it's a nice question. Actually, the texture is a big market in India. Yeah. और हम इंडियंस के हेयर थोड़े फ्रीजी हैं और काफ़ी डेंस थोड़े? भी होते हैं कैन से डेंस भी होते हैं, तो हमें स्मूथ और सिल्क हेयर काफ़ी पसंद आते हैं. Right. जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, या फिर आप देखोगे चाइना एंड अदर कंट्रीज़ में वो लोग अपने बालों को वॉल्यूम ज़्यादा पसंद करते हैं. Absolutely. Yeah. तो यहाँ पे इसीलिए स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा किया है लोगों ने, हमने भी किया है कि 2000 के बाद तो बहुत ज़्यादा, 2010 तक भी बहुत अच्छा. तो बेसिकली मैं कह पाऊँगा कि वहाँ पे ये था कि लोग बोलते थे कि डैमेजिंग द हेयर, कुछ लोगों के हेयर हुए भी, है. बट वो सिर्फ लैकिंग ऑफ एजुकेशन. अगर आपका हेयर स्टाइलिस्ट ठीक नहीं है तो वो ओवर प्रोसेस कर देता था, तो आपके हेयर फ्रीज हो जाते थे और डैमेज हो सकते टूटते थे. राइट. Okay. तो कभी भी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी वुमेन ऐसी नहीं थी उस टाइम पे, मुंबई में तो नहीं थी, कि जिन्होंने स्मूथनिंग नहीं किया होगा. इट वाज अमेजिंग ट्रीटमेंट और हमने भी बहुत किए हैं वो, तो कभी कोई ऐसा इश्यूज आया नहीं. जस्ट ओनली द लैकिंग ऑफ एजुकेशन. अगर आपके एक्सपर्ट वेल ट्रेन नहीं है तो वो किसी भी प्रोडक्ट से आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं, नॉट ओनली द स्मूथनिंग. राइट. Absolutely. So we can So say the key which I am taking out from here is educated, knowledgeable stylist के पास आप जाओगे, so it is Always safe. not damaging, and it is not overselling also. राइट. अगर आप एक्स्ट्रा फूड भी खाओगे, पानी एक्स्ट्रा पियोगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाला है. Right. तो Very ओवर good. प्रोसेस कुछ भी नहीं. Okay, that's a good takeaway. To go to educated, known stylists who have experience and all that. Especially when you do treatments like this. Any type of treatment, you are taking care about your hair, you need expert. Hey, true. Cool. That's great insight, Tanveer. So coming to the next biggest trend which is going on, which is your Botox. People say Botox में Botox नहीं है, या keratin में keratin नहीं होता है, या फिर सिस्टीन जो पहले चलता था उसमें कोई डैमेज रिवर्स नहीं होता है, या अभी जो लेटेस्ट है नैनोप्लास्टिया, पीपल से इट वर्क्स लाइक मैजिक, लेकिन उसमें कोई मैजिक नहीं है. तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में, होल टेक्सचर रेंज में? अगेन योर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट. बेसिकली ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, बोटॉक्स में बोटॉक्स नहीं है ना, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगेन वी आर लुकिंग हियर फॉर द फ्रीज कंट्रोल. ये सभी जितने भी टेक्सचर ट्रीटमेंट है फ्रीज कंट्रोल के लिए हम देख रहे हैं. राइट. और ये सारे ट्रीटमेंट आपके फ्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं. राइट. चाहे उनमें बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया एंड 16, ये सब एसिडिक ट्रीटमेंट्स हैं. राइट. तो ये सारे ट्रीटमेंट आपके बालों को रिलैक्सिंग देते हैं, ना कि स्ट्रेटनिंग, राइट. ना कि ओवर प्रोसेस, नथिंग इज देयर. Right. तो ये रिलैक्सिंग, तो अगर आपके बाल फ्रीज हैं उसको रिलैक्स कर देते हैं, तो आपको मैनेजेबल और स्मूथ हेयर ऑलवेज अच्छे लगते हैं और हेल्दी लगते हैं. राइट. तो सिंपली ये बात है कि जस्ट देयर कंट्रोलिंग योर फ्रीज. तो वहाँ पे अगर आप बोटॉक्स ढूंढ रहे हो या सब ढूंढ रहे हो, काम तो एंड ऑफ द डे वही हो रहा है. मोस्टली रिलेट कर देते हैं स्किन बोटॉक्स, Right. कि कुछ फिलर डाला है स्किन में और आपके रिंकल्स आउट हो गए, तो यहाँ यानी कि आप हेल्दी दिखने लगे. Right. अगर मेरे
फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं और मैं बोटॉक्स लेता हूँ तो वो हेल्दी हो जाती है स्किन, लाइक टाइटनिंग आता है। Right, तो आपका मीनिंग है कि अगर टाइटनिंग है या हेयर सॉरी स्किन अच्छी दिख रही है तो यानी कि हेल्दी स्किन है, राइट? इतना ही। Yes. तो वैसा ही हेयर में अगर आप बोटॉक्स करोगे आपके हेयर मोर मैनेजेबल दिख रहे हैं और सिल्क एंड स्मूथ। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि आप हेयर बोटॉक्स कर लीजिए। राइट। तो अगर वहाँ बोटॉक्स ना ढूंढो, आप हेल्दी हेयर ढूंढो। तो इसमें तो कोई बेसिकली आपके प्रॉब्लम एरिया को केटर कर रहा Yes, है, exactly, राइट? प्रॉब्लम एरिया आपका फिक्स कर रहा है और आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। राइट राइट। वो एक्सपर्ट पे छोड़ दो कि वो कैसे फॉर्मुलेटेड हो के आ रहा है। जितने भी जो भी कंपनियां डेवलप कर रही है प्रोडक्ट को और जो प्रोडक्ट्स को लाइक बैक एंड में काम करते थे, ऑल आर एजुकेटेड। यस। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है उन चीज़ों का, Right. तो अप्रूवल नहीं मिलता तो दे आर सेफ। यस। अगेन द लैकिंग ऑफ एजुकेशन। अगर आप किसी भी छोटे मोटे सलोन पे या किसी ट्रेंड एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाओगे तो मैं बताया कि आप एक्स्ट्रा पानी पी लो, उससे भी आपको प्रॉब्लम होंगे। राइट। तो ये तो बड़े ट्रीटमेंट्स हैं, एब्सोल्युटली। तो आप इनको कहीं पे भी नहीं कर सकते। आपको नीड प्रॉपर एजुकेटेड हेयर एक्सपर्ट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने जो स्किन का बताया बोटॉक्स में, जैसे स्किन इंस्टेंटली आपका झुर्रिया निकल जाता है, यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर, बेटर, स्किन इज टाइटर। सो इट्स द सेम थिंग इन द हेयर। इन द हेयर। तो यानी कि अगर आप मैनेजेबल स्किन्स को आप हेल्दी स्किन कह रहे हो, चीज़ें अच्छी कह रहे हो, तो सेम हेयर में भी आपको वही मिल रहा है। वो फ्रिज कट ऑफ हो रहा है और आपके स्मूथ एंड हेल्दी हेयर मिल रहे हैं आपको। एब्सोल्युटली। नो वंडर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपके क्लाइंट वापस आपके पास आ रहे हैं। इतना अच्छा कंसल्टेशन के बाद तो मैं आपके पास ही आऊँगा। Actually need to explain right way, that's it. Yes, that's very it's a great insight that we should go to an experienced person to get good service. Yes, in whichever field we go, right? Yes. ठीक है, तो now coming to the series of questions. Yes. ये of course आपके एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप प्लीज़ शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ। तो एज अ सैलून ओनर आप the best point is you are a salon owner and a stylist, right? You are not a stylist working for someone, you are not a salon owner who is not a stylist. तो आपको दोनों पता है, बिजनेस भी और ये इंडस्ट्री की नॉलेज और कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मेरे हिसाब से। एज अ सैलून ओनर, व्हेन क्लाइंट आस्क फॉर हेयर बोटॉक्स, व्हाट आर दे एग्जैक्टली गेटिंग? इज इट अ ट्रीटमेंट और अ मार्केटिंग टर्म? मार्केटिंग टर्म्स तो नहीं कह सकते इसको, कि मार्केटिंग टर्म्स अगर होता तो प्रोडक्ट इतना मार्केट में नहीं रहता। अब देख रहे हो काफ़ी टाइम से है और वो बेनिफिट्स दे रहा है, तो इसीलिए मार्केट में। तो मैं मार्केटिंग टर्म तो नहीं कहूँगा। तो अगर क्लाइंट्स आपके पास में आ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, इसके सोल्यूशन के लिए, तो अगर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं लाइक फ्रीज और कंट्रोल करके आपका बोटॉक्स उसको दे रहा है, राइट, तो वो एक राइट ट्रीटमेंट है और वो मार्केट में सस्टेन इसीलिए कर रहा है कि वो परफेक्ट ट्रीटमेंट है, तो उसको मार्केटिंग नहीं कह सकते। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो, और क्लाइंट खुश है। दे आर वेरी हैप्पी। लाइक आई कैन से कि इट्स अमेजिंग ट्रीटमेंट और सबसे ज़्यादा रनिंग है अभी मार्केट में। Yeah, that's true. Yeah, and clients do want it again and again. बिकॉज इट लाइक यू आर सेइंग इन मुंबई या कोस्टल एरिया कोई भी, वहाँ पे आपके ब्लो ड्राई वर्क नहीं करते, फ्रीज हो जाता है बिकॉज ह्यूमिडिटी इज टू मच। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ ऐसा चाहिए कि आपको नेक्स्ट डे वॉश करने के बाद में क्विक सेट हो जाए। राइट। तो बोटॉक्स द ओनली वन सोल्यूशन जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं अपने बालों को कि वो फिनिश ही है, यानी कि फ्रिज कंट्रोल है। राइट। तो ऐसी तो जगह रोज स्टाइल करने की देयर जरूरत नो नहीं। नीड, देयर नो नीड। इनफैक्ट लेस हीट ऑन योर हेयर फॉर लेस हीट, सेविंग योर टाइम, अगेन looks shiny and grown. That's good. Yeah, great. That's a great insight about how we are saving time, money. Time is money, right? And then you're not putting heat every day on your hair to style. Yes, so you're saving in other sense. I would say it is saving a lot of damage on the hair, on daily damage. Yeah, right? yeah, daily damage. Next question is Tanveer to you is keratin has been around for years now. I think over a decade. 10 साल के ऊपर ही हो गया है. Right. But today also we hear about cystine and nanoplastia. From professional standpoint, how are they actually different? Again, the very nice question. मैं इसको आंसर करूँगा आपको। मेरे हिसाब से एज एन हेयर स्टाइलिस्ट हमें बहुत ज़्यादा नीड थी कैरेटिन ट्रीटमेंट्स की, बट उसको किसी भी कंपनी ने और ट्रेनर जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने रॉन्ग प्रेजेंट किया मार्केट में। तो keratin was a filler in your hair, like sometimes you have damage and aging hair because Indian people they use long hair. Yeah. तो वो जैसे ये मेरा बाल है,
ये भी ग्रो हुआ है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। यस बट अगर मैं देखूंगा एंड्स में या मिड लेंथ में मेरे बाल की हेल्थ वैसी नहीं है, राइट तो मुझे अगर सेम हेल्थ चाहिए तो मुझे कैरेटीन ओनली सोल्यूशन। यस बट उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया मार्केट में कि सब स्ट्रेट करके दिखाते थे, यानी कि स्ट्रेटनिंग टाइप रिजल्ट शो कर देते रिजल्ट कि ये स्ट्रेट होते बाल। तो कैरेटीन को हमारा जो एंड यूज़र है वो समझ नहीं पाया, राइट जबकि अदर कंट्री में कैरेटीन ही ज़्यादा चलता है। हाँ। मैं अभी की नहीं, बहुत पुरानी बातें करता हूँ, और वॉज इन एब्रोड, तो दैट टाइम कैरेटीन के स्प्रे यूज़ करते थे हम फॉर द ब्लो ड्राई। यस तो अगेन द फील कर देते थे, यानी कि यहाँ पे भी इंडिया में कभी कभी इंट्रोड्यूस किया बहुत सारी कंपनियों ने, जो वर्क नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। तो यानी कि कैरेटीन को यहाँ पे अच्छे से मार्केट में लॉन्च करने के टाइम पे सही से अपने एंड यूज़र को एजुकेट नहीं किया नहीं गया। किया। हाँ अब दूसरी चीज़ों पे आते हैं, नैनोप्लास्टिया का जो मैजिक चल रहा है मार्केट में, बिकॉज वो फ्लैट दिखाता है हेयर को ना, रिलैक्स दिखाता है वो, बिकॉज एब्सोल्युटली स्ट्रेट। या इट्स एसिडिक ट्रीटमेंट, देयर इज नो फिलर सिस्टम, इट्स एसिडिक ट्रीटमेंट, राइट? तो रिलैक्स दिखाता है। तो वहाँ पे उन्होंने रिलेट कर लिया स्ट्रेटनिंग के साथ में, बिकॉज इंडियन हेयर तो फ्रिज हैं, तो वहाँ पे उनको फ्लैट और स्ट्रेट हेयर काफ़ी पसंद आते हैं। तो इसीलिए, और वो उसमें फ्यूम्स नहीं है, इरिटेशन नहीं होती नैनोप्लास्टिया या बोटॉक्स में, तो इजीली वर्क कर गया वो। कभी कभी उसमें भी कुछ प्रोडक्ट थे जिनमें काफ़ी ऑयल था, तो स्मोक बहुत था, स्मोक ज़्यादा तो वो भी आउट हो गए। राइट तो आपके पास में भी नैनोप्लास्टिया या बोटॉक्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, जो आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं है, कोई स्मोक का इशू नहीं है वहाँ पे, और आपके हेयर भी फ्लैट दिख रहे हैं, राइट जबकि होना चाहिए था कैरेटीन। राइट। हाँ बट कैरेटीन वर्क नहीं कर नहीं पाया कर गया। बिकॉज उसका ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा। तो उसका एडवांस फॉर्मुलेशन में इन्होंने ये लॉन्च कर एग्जैक्टली, तो एज पर द नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन मार्केट, या नैनोप्लास्टिया एंड बोटॉक्स वर्किंग वेल। बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रेट ऑब्सेस्ड है। यस, या दैट्स राइट। True. Coming to next question, many brands claim this treatments repairs the hair. Okay, बहुत सारे ब्रांड्स बोलते हैं कि ये ट्रीटमेंट करने से रिपेयर होता है, बट इन रियलिटी क्या ना, केमिकली ट्रीटेड हेयर, हमने पहले ब्लीच लगाया है या कलर लगाया है, कैन दिस काइंड ऑफ हेयर बी ट्रूली रिपेयर्ड आफ्टर दिस ट्रीटमेंट? अगर आपके हेयर, पहले पर्पस समझिए कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर मुझे प्यास लगे तो पानी ही पिलाना चाहिए, मुझे आप घी दोगे, कोई कुछ और देगा, तो मैं नहीं पी पाऊंगा, वो चीज़ें अच्छी नहीं। तो अगर मेरे बाल फ्रिज है, तब हम इन ट्रीटमेंट की साइड आते हैं। तो फ्रिज को कंट्रोल कर रहे हैं तो लुक्स रिपेयर अगेन, बिकॉज मैं जैसे पहले भी बताया कि आपके बाल हेल्दी दिखने लगते हैं, कि वो फिनिश है और शाइनी है। या तो आप उतना ही काम कीजिए ना बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया से। जब आपने बताया कि अभी आपने कोई बाल को पहले ही ओवर प्रोसेस्ड किया हुआ है, मैं ओवर प्रोसेस्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ कि आपने ब्लीच या किसी प्रीलाइटनर का नाम लिया, राइट राइट। तो वहाँ पे आपको प्लेक्स ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, आपको वही चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे रिपेयर करना है अपने हेयर को, प्लेक्स के बिना वो पॉसिबल नहीं है। राइट अगेन अपने बॉन्ड्स रीयूनाइट करने हैं तो आपको प्लेक्स चाहिए। राइट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कलर करने से बाल थोड़े फ्रीज या ड्राई दिख रहे हैं, और उनके ऊपर हमने बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया यूज कर लिया, तो हेयर लुक्स अगेन स्मूथ एंड शाइनी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हेयर लुक्स हेल्दी। तो आपके बोटॉक्स एंड नैनोप्लास्टिया हमेशा आपके बालों को हेल्दी दिखाते हैं। हाँ बट अगर आप बिल्कुल डैमेज कंडीशन है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ और नीड है, आपको अपने बालों को रिपेयर करना है, ना कि उनको शाइनी और स्मूथ दिखाना है, दिखाना है। तो वहाँ पे प्लेक्स यूज करें। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि रिपेयर तो नहीं करेगा, लेकिन आपको दिखावे में तो अच्छा दिखेगा। एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट, एंटी फ्रिज, सो जो दिखता है वही बिकेगा। ऑफ कोर्स कह सकते हो, आप कह सकते हो। जैसे प्लेक्स में इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं दिखता है, राइट? प्लेक्स में कोई स्मूथनिंग एजेंट नहीं होता। आपकी अगर कोई घर की वॉल डैमेज हो गई है तो आपको उसको रिपेयर करना है, तो आपको सीमेंट्स की नीड है। बट अगर उसकी शाइनिंग और फिनिशिंग को देखा जाए तो वहाँ पे आप पुट्टी करोगे, पेंट करोगे, वो आगे की चीज़ है। राइट। तो आपको दोनों भी चाहिए। तो अगर आपको अपने बालों को फिनिश और अच्छा दिखाना है तो आपको बोटॉक्स नैनोप्लास्टिया से वो लुक ले सकते हैं। बट अगर डैमेज है तो पहले प्लेक्स ट्रीटमेंट ले लीजिए, 1-2 सिटिंग्स, जो भी आपके हेयर एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट पे जाइए। वेरी गुड पॉइंट, दिस इज अ रियल गुड पॉइंट। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, एंड जैसे आपने बोला बहुत लोग एडुकेटेड नहीं हैं, तो उनको जो सिखाया जाता है कि अरे प्लेक्स आई मीन नैनोप्लास्टिया कर दो, बोटॉक्स कर दो, बाल ठीक हो जाएंगे। तो वो शायद वो मैसेज क्लाइंट के पास जा रहा है कि आप
कर दो और आपका ट्रीटमेंट रिपेयर हो रहा है। ये हाँ रॉन्ग एजुकेशन बोलो उसको, क्योंकि अभी लाइक आप देख सकते हैं हम लोग इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे इंस्टीट्यूट और बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रहे हैं लोगों को। मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत है, पॉपुलेशन इज टू हाई, बहुत सारे हेयर एक्सपर्ट चाहिए, ट्रेंड एक्सपर्ट चाहिए, और ट्राइंग, लॉट ऑफ कंपनीज ट्राइंग, है ना। तो बट यहाँ पे अगेन द लैकिंग ऑफ एजुकेशन को ही मैं मानूंगा कि लोग व्हाट्सएप से इधर उधर से देख लेते हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हर एक ट्रीटमेंट को उसके पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो आप पहले समझ लीजिए प्रॉब्लम क्या है, फिर सोल्यूशन तो आपके पास सारे रखे हैं ना, राइट, दे दीजिए ना। ऐसा है। तो अभी मेडिकल स्टोर में इतनी दवाइयाँ हैं, सभी शेप, वाइट कलर, सम दिख रही हैं ऐसी, बट उनके सॉल्ट अलग अलग है। राइट, तो वहाँ पे डॉक्टर की नीड होती है हमें। राइट, ऐसा तो नहीं मेडिकल से लेके मैं खुद ही खा लूँ तो फिर सर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेयर एक्सपर्ट की जरूरत है, तो जब आप ऐसे ट्रीटमेंट के साथ जा रहे हो। So brilliant. I mean, Tanveer, you should. Do you have any plans of opening an academy? Because आप बहुत अच्छा सिखाते हो और I mean, I think you should open an academy if you don't have one. हाँ ट्राई करेंगे फ्यूचर में। अच्छा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं एंड आई थिंक यू आर स्ट्रेसिंग ऑन एजुकेशन अगेन एंड अगेन। आई थिंक पीपल लाइक यू शुड हैव एन एजुकेशन मॉडल विच पीपल, और आपके नीचे जो ट्रेन होते हैं उनको आपको अच्छी तरह सिखाना चाहिए। आई एम श्योर योर स्टाइलिस्ट आर वेल ट्रेन्ड अंडर यू। या दैट्स व्हाई वी आर सक्सेस। या एक के बाद एक सैलून हमने इसीलिए ओपन कर पाए कि हमारे पास अच्छी टीम होती है। अच्छा, तो उसकी वजह से लाइक सैलून में तो परफॉर्म आपकी टीम ही करने वाली। राइट, वो चेयर, वो इंटीरियर, वो आपको पैसे नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली, या। तो अगर किसी भी सैलून की इसके लिए तो क्लाइंट एक बार आएगा। यस, किसी भी सैलून की सक्सेस में देखोगे उनका रिटेंशन बहुत हाई होता है। या, और बिकॉज ऑफ उनका स्टाफ एजुकेटेड होता है, राइट, एंड राइट प्रोडक्ट होते हैं, और उनको उसका ज्ञान है कैसे यूज करना है। And coming back, everything is related to education. Yes. Only the education. Absolutely. Okay, going to next question is repeated keratin safe in long term? What changes do you see in the hair after 3 to 4 repeated sessions of keratin, Botox or nanoplasty? Any of this? Again मैं इनको थोड़ा सा सेपरेट रखूंगा। कैरेटीन को आप कभी भी रिपीट कर सकते हो। मैं बताता हूँ, मैं जैसे बताया कि एब्रॉड में था मैं, तो वहाँ पे 3 o'clock तक, यानी कि मॉर्निंग 10 से 3 o'clock तक हम सभी अपॉइंटमेंट्स रखते थे, हेयर कट, कलर एंड एवरीथिंग। जैसे ही 3 o'clock हो जाता था मेरा पूरा स्टाफ फ्लोर में आ जाता था, ब्यूटिशियन भी सभी, और हम सिर्फ ब्लो ड्राई करते थे, यानी कि वॉश एंड ब्लो ड्राई। तो बाहर कल्चर ऐसा है कि वो अपने बालों को घर पे नहीं धोते, तो सभी अपने बालों को सैलून में धोते। आप कोई इंटरनेशनल न्यूज चैनल देखो, पीछे आपको कोई लेडीज घूम रही परफेक्ट हेयर के साथ दिखेगी, राइट, वो बाल नहीं बांधे हुए होगी। बांधने का कल्चर नहीं है। और अगर आपको बाल ओपन करना है तो आपको परफेक्ट दिखना है, राइट, तो ब्लो ड्राई ओनली ऑप्शन है। तो वहाँ पे हम जो ब्लो ड्राई एक वीक में 2 times या वंस इन वीक, बिकॉज पॉल्यूशन कम है बाहर, तो हम करते थे। तो ओनली सोल्यूशन था कैरेटीन स्प्रे, राइट। तो जब भी हमें अपने बालों को परफेक्ट दिखाना है, या हम अपने बालों को, मैंने बताया, इक्वल दिखाना है, यानी कि आपके जो अभी ग्रो हुआ ये हेयर से लेके आपके 2-4 साल पुराना एजिंग हेयर तक, बॉटम तक, उसको इक्वल दिखाना, तो वहाँ पे कैरेटीन फिल करना ही ओनली ऑप्शन होता है, राइट। तो कैरेटीन स्प्रे आपको बहुत हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो कैरेटीन आप अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम बातें करें नैनोप्लास्टी एंड बोटॉक्स, मैंने बताया कि वो एसिडिक ट्रीटमेंट है, तो उनका एक टाइम फ्रेम रहता है, वो 4-5 मंथ इजीली वर्क करते हैं। और उसके बाद अगर उसको करना है आपको, तो तभी हेयर एक्सपर्ट आपके बालों को अच्छे से एनालिसिस करके और प्रोटेक्शन के साथ, या फिर डायरेक्टली एप्लीकेशन दे, सो मेनी टेक्निकल टर्म्स, बट वो हेयर एक्सपर्ट ही जानेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट ऑफ हेयर की होगी, आपकी हेयर की हेल्थ अलग है, मेरे हेयर की हेल्थ अलग है, एब्सोल्युटली। तो जब वो हेल्थ से मैच करके आपको ट्रीटमेंट देगा, तो वो आपको टाइम फ्रेम भी बताएगा कि नेक्स्ट हम कितने टाइम के बाद कर पाएंगे। तो आप अपने एक्सपर्ट के सजेशन में ही चले। अगेन फिर एजुकेशन मैटर, अगर आपका हेयर एक्सपर्ट एजुकेटेड है, वो आपको राइट एडवाइस देगा, बट कैरेटीन का ऐसा नहीं है। राइट, तो मतलब एक्सपर्ट चेक करके बताएगा आपको नीड है या नीड है या नहीं, और दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको चेक कराना चाहिए कि डज योर हेयर नीड। एग्जैक्टली, कूल। सो व्हेन शुड अ स्टाइलिस्ट एक्चुअली से नो टू दिस ट्रीटमेंट? वैसे तो आपने इसका आंसर बता दिया, लेकिन आपके हिसाब से व्हेन शुड, अगर कोई एक्सपर्ट को अगर आपको बताना है, आपको कब मना करना है ये ट्रीटमेंट के लिए कोई क्लाइंट को, तो वो क्या होगा?
देखिए, अगर मैं कैरेटिन के लिए मना करना चाहूँगा, किसी भी मैन को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कैरेटिन, बिकॉज उनके हेयर ऑलरेडी हेल्दी है, अच्छे हैं, हाँ। तो देयर नो नीड, या राइट। राइट और अगर कोई वुमेन है, उनके सिल्क और लिम्प हेयर है, हाँ काफ़ी सारी वुमेन्स के बड़े हेल्दी और अच्छे हेयर हैं, हाँ। तो मैंने बताया सिल्क और लिम्प, तो उनको भी कैरेटिन की नीड नहीं होती है, Right. बोटॉक्स प्लास्टिया की नीड नहीं है, अननेसेसरी ना करें। राइट अगर किसी के फ्रिज हैं, यानी कि फ्रिज अगेन अगेन कोट कर रहा हूँ मैं, फ्रिज, हाँ तो वहाँ पे ही नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स ये सब करने चाहिए। और कैरेटिन वहाँ फिल कर सकते हो जहाँ बहुत एजिंग और लेंथ यूज़ कर रहे हो आप, राइट या फिर आपके बालों से, जैसे आप मुंबई जैसे कोस्टल एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, आपके क्यूटिकल्स ओपन हैं वहाँ पे, तो वहाँ कैरेटिन यूज़ कर पाओगे आप ये। ओके तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी हेयर की हेल्थ कैसी है। तो अगर वो वर्जिन हेयर है और सिल्क एंड स्मूथ है, देयर इज नो नीड। नो नीड और अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, ओवर प्रोसेस्ड है, वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे पहले प्लेक्स ट्रीटमेंट ले लो, राइट उसके बाद में आप ये ट्रीटमेंट के साथ, ओके ठीक है। तो हेल्दी और सो सिल्क बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज जो एक लिम्प हेयर है या बहुत ज़्यादा फ्रिज नहीं है, स्मूथ है, स्ट्रेट है, तो उस बालों में आपको नहीं करना recommend चाहिए, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, यस कुछ मतलब नहीं। राइट तो अगेन फ्रिज कंट्रोल ट्रीटमेंट है, तो राइट गुड What is the biggest mistake salons make while offering this services? मतलब इसमें क्या चीज़ ये हो सकता है कि सैलॉन्स नहीं, सैलॉन के स्टाइलिस्ट क्या मिस्टेक कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट करते वक्त, और अगर ऐसा कुछ है जिस पे उनको ध्यान देना है, आपका एक्सपीरियंस? अगर किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट का कंसल्टेशन ठीक नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है मिसकम्युनिकेशन, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस एंड हेयर स्टाइलिस्ट का एक्सप्लेन करने का तरीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैसी होता है। तो सबसे पहले वही है कि हेयर स्टाइलिस्ट को रिलैक्स होके अपने कस्टमर यानी कि अपने क्लाइंट या अपने गेस्ट, हम जो भी कहें, उनके बालों को एनालिसिस करके उनको राइट ट्रीटमेंट सजेस्ट करना होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो सिर्फ वो कम्युनिकेशन में ही ब्लंडर होता है जहाँ भी, बाकी ट्रीटमेंट में, प्रोसेस में और आफ्टर केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वेल ट्रेंड है, वहाँ सारे स्टाफ जो अच्छे सैलून में वेल ट्रेंड है, बस वो कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट की और हम फील क्या कर रहे हैं, क्या डिलीवरी दे रहे हो, दैट्स इट। वहीं पे एक इश्यूज है, बस वो संभालना है। So expectation versus delivery is the Right, main right, issue. right. So if you have consulted your client well, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बता नहीं पाते हेयर स्टाइलिस्ट बहुत बार, हाँ हाँ कर देते हैं हर चीज़ में, या और हमारे क्लाइंट्स एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कर जाते हैं। हाँ तो 1-2 हाथ से, 1-2 इशारे से, 1-2 अपनी बातों से कि मुझे हेल्दी हेयर चाहिए, सिल्क एंड स्मूथ चाहिए, तो बीच में हाथ ऐसे घुमा देते हैं कि सीधा भी चाहिए, हाँ तो दिक्कत हो जाती है, तो कर्ल्स रह जाता है। बेसिकली जो इनएक्सपीरियंस स्टाइलिस्ट होगा वो बेसिकली फ्लस्ट, मतलब घबरा जाएगा, घबरा बोलेगा, जाएगा, ठीक है, समझ client नहीं चला पाता, जाएगा, समझ नहीं और फिर टारगेट का प्रेशर अलग होता है। टारगेट तो नहीं कह सकते, सब सलोनों में टारगेट्स नहीं होते। ओके तो जो अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनके कोई टारगेट नहीं, उनके तो पीछे लाइन लगी है। अच्छा, that's a great thing. If a client wants frizz control but has heavily bleached hair, what is the safest route? I think you told me this answer, but again, हाँ, अगर समबडी हैवीली ब्लीच्ड हेयर, मतलब वो 9-10 लेवल पे उन्होंने प्री लाइट किया हुआ है, right, लेकिन यहाँ प्री लाइटनिंग में भी ऐसा है कि अगर अच्छे प्री लाइटनर यूज़ किए गए और 20 वॉल्यूम के साथ में किया गया 1 और 2 राउंड में, ऐसा नहीं 40 वॉल्यूम नहीं डाल देना है प्री लाइटिंग में, 30 नहीं दे देना है, 20 वॉल्यूम से प्री लाइट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया जा सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है वहाँ पे। टेम्परेचर थोड़ा सा इनका कम कर लीजिए वहाँ पे। right, वो सभी हेयर स्टाइलिस्ट को पता है कि अगर थोड़ा सा हेयर में लग रहा है आपको ड्राइनेस है, ये सब है, तो उसको इजी टेक केयर कीजिए। right. तो टेम्परेचर कम कर लिया हमने, ज़्यादा टाइम तक छोड़ते नहीं लगा कि वो जो उनका एक Processing time. राइट, तो वहाँ पे हम लोग 1 आवर तक नहीं जाते, 30-15 मिनट्स में ही हम, तो इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत ही ज़्यादा अगर डैमेज कंडीशन है हेयर की, हेल्थ ही ठीक नहीं, तो मैंने अगेन बताया कि उनको पहले हेल्थ ठीक करो, यानी कि प्लेक्स ट्रीटमेंट दे दो, तो हमें कर सकते हैं, कोई ठीक है। That was a brilliant session, Tanveer. It was very nice having you in this chat.